अब्बास साहब जो है वो फाउंडर है टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर कराची के, और फाउंडर मेंबर्स में से हैं सोसाइटी फॉर पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स, स्पेल्ट, थैंक यू, और यस, वेल नोन मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर ट्रेनर अंग्रेजी जबान के, और इस्लामिक स्टडीज में भी बहुत यदे तूला रखते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm जी, thank you Taimur Mumtaz for this honor. The single insight I want to offer is an intellectual insight in an aspect of faith. ये मेरे तमाम साथी हाजरीन जानते हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, यानी हम जैसे लोग, उनके ईमानियात के साथ साथ अकल और फहम का साथ होने का उनको एक आर्जा लगा। उस हवाले से मैं समझता हूं कि असातिज़ा जब कहते हैं that the folk of the folk with simple faith will be forgiven much more than the intellectuals who want to understand things with intelligence and with ये एक डायनामिक है। तो मेरा यानी आज की कोशिश ये हो, I believe in something and I now have an intellectual reason also to deepen my faith in the Quran. In the Quran. ठीक है जी? My faith in the Quran, it is the universe made book, यानी कि माइक्रोकॉस्म। ये दो अल्फाज हमारे लैंग्वेज में बहुत चलते हैं कि the universe is the book made large and the Quran is the universe made book. ये दो डायनामिक एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए। सो मेरा ईमान है कि मेरे लिए कलाम पाक एक कायनात है। आलम कबीर आलम सगीर के एतबार से इंसान भी आलम सगीर है, वो दैट्स अ टोटली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, वो एक अलग गुफ्तगू है। अभी आज हमारा मौजूद ये। तो अच्छा, मैं चाहूंगा कि अगर हाजरीन चैट का फायदा उठाते जाएं और साथ साथ if they keep connecting as well कि हाँ, yes we are with you, आपके साथ हैं, thing like that, so I will feel that the conversation is moving. ठीक है जी? Okay. और okay. Thank you. So my faith in the Quran is that it is the universe made book, made small, a microcosm. Okay. And at the same time, as a corollary to this is that the universe is a macrocosm, the book made large. And the Quran made large is the universe, and the universe made small is the Quran. यानी एक डायनामिक समझे हम, एक ईमान की बात समझें, एक दिल को उठाने वाली बात, एक लुभाने वाली बात समझें, एक डायनामिक। Right, Taimurji, is the English and Urdu mixture fine? Is it not fine? आप जरा सा गाइड कीजिएगा। My slides are all in English, और दरमियान में I will be speaking a bit of Urdu साथ साथ, so that we are able to go along, right? Okay, fair enough. Sure. अच्छा जी, the key, आइए अब जरा सा यहाँ से we go a little deeper and we understand something. The key connecting both is the word ayat. ये कलाम पाक के कमालात में से है कि परवरदिगार ने आयत का लफ्ज यूज किया, आयत एज साइन, निशानी। आयत एज साइन मीन्स क्रिएशन, बेयरिंग द सिग्नेचर ऑफ द क्रिएटर। ये सिग्नेचर के पहले 4 हुरूफ में साइन छुपा हुआ है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट?
So the word ayat in the Quran is used to refer to the sun, the moon, the stars, the valleys, the growing of plants, trees, grasses. These are signs in creation, ayat. And the word ayat is also used, that's the amazing, jo abhi hamari, the key, and it is this. Sorry, yeah. The word ayat is also a sentence in the book. Hence, Surat Yasin has 83 verses, yani ke ayat, yani ke sentence. तो ये जो रब्त है कि हमने इस कुरान में आयात नाजिल की, यानी आयत और सूरत are the only two descriptions of the Quran made in the Quran itself. ये खुद बहुत दिलचस्प बात है. And all those, mashallah, all of us read, so we know that, for example, 30 manzils, 30 paras, 7 manzils, 540 rukus, all these are divisions of convenience to read the book. इसके ऊपर कोई argument नहीं है और ये divine भी नहीं, and neither does it matter. Only ayat and surat are from Allah. So I consider this a very deep point, that Allah subhanahu wa ta'ala has used the word ayat to refer to creation and the word ayat to refer to the sentences of the book. Okay. Okay, if you are here with me so far, this is quite basic, but this is going to take us in a jiffy. All right. अच्छा. Now here is my insight. आज की अगर जो लोग वक्त के हवाले मसरूफ हैं, वो आज की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब सुन रहे. Here it is. आगे तफसीलात हैं. तो हमारे तालीमी निज़ाम में कहते हैं ना, सर नोट्स दे दीजिए. So here are the notes. There's only one note. Here it is. The names of the surahs. The names of the surahs in the Quran correspond to categories of creation in the macrocosm. I have also used the word existence, which is a similar word to creation, which is fine. The names of the surahs in the Quran correspond to categories of creation in the macrocosm. Here is the answer. यानी जो बात समझनी है अभी तफसीलात. सुभान अल्लाह, we are going fine. अच्छा. So to understand this dynamic, that everything that exists, I should change this to existence, because Allah's existence is the greatest. So sorry. Yeah. I think this will allow me to capture the whole. There we go. The names of the surahs in the Quran correspond to categories of existence in the macrocosm. Right? Okay. Now, it turns out, कुछ categories मैं आपको पेश करता हूं. Beginning with the names of Allah. Of course, existent being में Hast तो Neest. सारा मसला ही है और नहीं है. Anyway, Surah Rahman, Surah Ghafir, Surah Ala, Surah Fatir, Surah Nur. Take these as the icons, the names of Allah. Surahs having the names of Allah. For the moment, ये एक गुफ्तगू शुरू है. Let's see various other categories. फिर मैं कुछ सवाल जवाब और डिस्कशन के लिए फर्क. ठीक है. All right. Then when we come to creation, we find this amazing. Again, in tamam sirf surton ke naam par chal raha. I haven't written the word surah over and over again, but surely you know. Surah Insan hai, Surah Jinn hai, Surah Malaika. All we've got them. Here, non-human creations में बकरा है, cow, नहल है, नमल है, the ant and the bee, ankabut hai, spider, feel hai, elephant.
there we go. Your four-legged creatures, the insect world, the mammals, humanity, non-human creation, greater than human creation. You've got them all. And it's truly amazing. Here, because Allah Ta'ala is more worried about the moral categories of humanity and humanity ke gradations. So we have Nisa, which is women. Ambiya, which is, this is brilliant. A category of humanity exists, which is prophets. खुद इसी बात पर अगर मॉडर्निटी को जो कि सेक्युलरिटी में डूबा हुआ है और कहता है कि जनाब ये सारे इंसान इको ही हैं ये डेमोक्रेसी का दौर है, सब लोग बराबर हैं, तो कहते ना जी एक कैटेगरी है एक कैटेगरी है जो आपसे थोड़ी सी शऊर में और उसमें आपसे बेहतर है. This is to say the least. Here इंसान, I'm reusing the word इंसान and us. I believe it is significant कि singular और plural दोनों में नाम मौजूद है. I believe this is brilliant. There are individuals who are extremely important and who are important in humanity. Call them role models. But then there is Nas, which is the species of humanity. Humanity, all of them. So ये दो बातों का होना is important for us to pay attention. Some things apply to all humanity, okay, but then within human beings there are some human beings valuable. Now this is reflected in a very powerful moral category, मोमिन and मोमिनून. अब जरा इसको देख लीजिए, मुनाफिकून एंड काफिर. देयर वी गो. यानी मॉरल कैटेगरीज में इंसान की ये लेवल्स हैं कि या तो आप मोमिन हैं इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल सही है. डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आई एम परफेक्टली अवेयर that the word Surah Ghafir and Surah Mu'min are the same. Therefore, a surah can have two names. ये एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है. As I said, आज तो मैं इंसाइट का ओपनिंग दे रहा हूँ आपको. इसकी डेप्थ के लिए the invitation and the mashallah the month of Ramzan and a time for thinking and reflection is open to all of us. तो कमाल यहाँ आप ये देखिए कि सूरह निसा है, women, okay, अंबिया है, इंसान है, नास है, मोमिनून है, मुनाफिकून है. नहीं और भी हैं जनाब. शोरा, पोएट्स, ये एक अलग कैटेगरी है अब इसमें फिर मॉरल एलिमेंट है या नहीं है, लेकिन ये एज ह्यूमैनिटी अल्लाह ताला ने एक तखसीस की हुई है. साथ ही हमें ये शूरा बहुत दिलचस्प लगा. द पीपल विथ whom your conferences, the people with whom you confidence, you take advice from, shura, okay, and as a tribes, humanity divided in tribes, और ये नाम सारे कैटेगरीज ऑफ ह्यूमैनिटी के एतबार से पढ़ते हैं. Now ये देखिए फ्रेंड्स, these are results of meditation and thinking and reflection, and certainly there is no finality in this. इसके ऊपर मजीद काम करना है और करना बाकी. ये आगाज. I've started you on a way of thinking. सब लोग अगर सुन रहे हैं, are you following me? Am I going too fast? Friends जरा चैट में बताते जाएं. जी हाँ बिल्कुल. सर ये आज़ाब बता दीजिए, आज़ाब का मतलब. Okay, thank you. Yes. जी, ये गुफ्तगू is come. I understand that it comes from a place of surprise and comes from a place of wonderment. I understand that. बस ये मैं और डीप चला जाऊं उससे पहले आप मुझे यही बता दे बात साहब फला चीज का क्या, तो I will then reflect. I'll just pause here. जी जनाब. जी, एहसाब is right. Thank you. Yeah. Yes sir. जी अगर किसी और का कोई सवाल हो तो अभी एक वक्फा सा है. I'm deliberately going with a little slowly because this insight has been, when it comes for the first time,
it hits people, as you are a, a witness to that. बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो शायद काफी वाज़ेह है। और सिर्फ एज़ा प्लीज बता दीजिए, एज़ा मतलब ट्राइब्स ना, जी कबीले। प्लीज गो ऑन, आई एम लिसनिंग। निसार साहब पूछ रहे थे एहजाब का मतलब। ओके, अच्छा, एहजाब का मतलब ट्राइब, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ फेथ, ये मुझे बड़ी दिलचस्प बात लगी। यहाँ फेथ से मुराद दीन है, दीन इस्लाम। इट इज इंटरेस्टिंग कि हमारे दीन में सच्चाइयां हैं, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, पिलर्स ऑफ फेथ है। लेकिन सूरतों के नाम में मैं जो कमाल देखता हूं, दो हैं, तौबा एंड हज। एंड बिटवीन देम आई सी इंटायरली द होल थिंग ब्रैकेटेड। यानी अगर दीन को आपने ब्रैकेट्स में लगाना हो तो तौबा एंड हज आर योर टू ब्रैकेट्स। ट्रूली इट इज मार्वेलस। तौबा के बारे में असातिज़ा समझाते हैं, इट इज द गेट ऑफ गेट्स। तमाम रूहानियत का आगाज तौबा से होता है, जिस भी माने में आप लफ्ज तौबा समझे। द वर्ड तौबा itself has a lot of depth. I cannot get into a whole that's just on this. But the first step is, Lord, I have been guilty, I have been amiss, I have been stupid, I agree and I see and I repent of that which I have done and I turn around. अगर ये नहीं है तो कोई गुफ्तगू हो नहीं। यानी if you are not able to do this tawaba, this turning, oh now जी आप बाकी की सब बातें छोड़ दें। just leave it, छोड़ दें। अच्छा, जो हमारी दीगर इबादत है उसमें आप जरा गौर कीजिए, सलात और ज़कात are the basic collecting ibadat of every Nabi mentioned by name in the Prophet, in the Quran. हर नबी की कुल तालीमात दो ही थी, सलात और ज़कात, और इसके अंदर में तमाम पिछले अंबिया की तालीमात आ जाती। वंडरफुल। तो हमारे भी दीन में सलात, नमाज और ज़कात। रोजे के बारे में भी कहा कि जी ये भी दीगर लोग भी करते थे, पिछले भी आप भी करते हैं, फेयर इनफ। हज, about this the masters say only the last messenger was the one who was given the mandate of collecting all mankind at the house of God. ये उनका ही काम था, सिर्फ आखिरी रसूल का काम था कि पूरी इंसानियत को परवरदिगार के दर पे पेश करते, एक लिबास में, एक जबान में, एक अल्फाज में, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और इस तरह हज then is the closing bracket to the entire diagram of faith। और यही दो सूरतों के नाम कलाम पाक में मौजूद। क्या बात भाई, कुछ अहबाब से कुछ मुझे बाज़गश चाहिए कि ये इंसाइट, कुछ बात आप तक पहुंची, प्लीज टेल मी। अब्बास साहब, हम एक एक करके सबसे एक एक जुमला ले लेते हैं। हाँ, लेट्स डू। जी अस्सलाम वालेकुम। एक मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि जो हज को आप अल्टीमेट गोल कह रहे हैं दीन का, मतलब मुझे ये बात थोड़ी सी इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। मतलब ये इख्तिताम है, अल्टीमेट स्टेज है मजहब की। इज दैट व्हाट यू मीन? ठीक है, आई विल मेंशन। क्योंकि असल में ना जो काबा है ना, काबा को कहते हैं कि मतलब वो मैक्रोकॉस्मिक एनालॉजिकल कोरेस्पोंडेंसेस करें तो जो कल्ब है, जो हार्ट है, उसकी कोरेस्पोंडेंस काबा के साथ की जाती है। तो काबा की तरफ जो सफर है बेसिकली वो इनवर्डली या स्पिरिचुअली स्पीकिंग वो आपके कल्ब की तरफ सफर है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में आप बेसिकली कह रहे हैं कि तौबा शुरुआत है स्पिरिचुअल ट्रेवल की, और इख्तिताम जो है वो कल्ब सलीम का हुसूल है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक हो, बिल्कुल, अच्छा जी, ठीक है भाई, थैंक यू।
जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो थैंक यू सो मच सर फॉर ब्रिंगिंग थिंग्स इन अ न्यू लाइट। अच्छा, एक तो आप मैं इसमें एक मेरा सवाल ये होगा कि आपने डिफरेंट कैटेगरीज हमें बता दिए हैं और हम देख रहे हैं, और ज़ाहिर है अब जो कुरान की सूरतों के नाम के हिसाब से जिस तरह मुख्तलिफ लोगों ने कहा है कि we're gonna look at it in a different way। अब मेरा सवाल ये है कि ऑब्वियसली मतलब कुरान ज़ाहिर है कहते हैं जो इसको देखेगा हर एक की नज़र मुख्तलिफ है और उसको मुख्तलिफ एक मैसेज मिलेगा। तो ये जो नाम रखे गए हैं इन सूरतों के मुख्तलिफ चीज़ों पे, अदर दैन द डिफरेंट कैटेगरीज दैट वी गोना डिस्कस टुडे, आपके ख्याल में इसका एक डीपर क्या पर्पस है? क्योंकि ये तो वो किताब है जो ता क़यामत रहेगी और इसके अंदर आपको इन डेप्थ बहुत से ऐसे राज भी मिलते हैं कि कई दफ़ा जिसको इंग्लिश में आहा मोमेंट कहते हैं कि यू जस्ट सरप्राइज। So other than this apparent distinction, what do you think is the deeper message here? क्योंकि अल्लाह ने एक क़यामत किताब में जो रखा है कि ये उसने कैटेगरीज और ये चीजें रखी हैं, तो उस पे अगर आप जरा if you throw some light. Thank you. MashaAllah. I'm glad that you are listening. I'm very happy to be sharing. MashaAllah. Thank you, Mariam ji. I surely we will come to this. जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक तैमूर आपने बड़ा अच्छा हैंडल किया और सब लोगों से वी बीन एबल टू, बहुत खूब। तो जी इधर तक अगर आप माशाल्लाह आप लोग साथ हैं, मैं वो जो है अब्बास नकवी भाई वाली बात को मैं यूं एक्सप्लेन करता हूँ कि कुछ स्कॉलर्स ने और असातिज़ा ने हज की जो सफर, फिजिकल सफर, घर से आपने इरादा किया निकलना, आपने इरादा किया, हज की नियत किया, दिल वाली बात, फिर उधर से आपने एहतमाम शुरू किया, फिर आप सफर पे चले, फिर आप मीकात पे पहुंचे, आपने मीकात पे कफन यानी कि एहराम पहना। अब यू सी हाउ इट गोस। तो जिंदगी की सारी ऊंच नीच आपने, घर जिसी के मुराद बचपन है, the true home is our childhood, not the house we live in. The true home, it is a very symbolic sentence. Our homes in our minds are our childhood, wherever it was. ये एक बहुत दिलचस्प बात। So to leave the home is a mark of adulthood. I'm now old enough to leave. And then the journey from the home to the miqat are the journeys of maturity. And then at miqat, you give up your life and you turn to the grave. You are in ihram. From the ihram to the, you wear the ihram. From the miqat to the haram is barzakh. And at the house of the Lord is the day of judgment, where all the others through the ages, graves have opened up and people have come out saying, Labbaik Allahumma Labbaik. Now, in this little bit of discussion, you realize that no ibadat has summarized the entire stages of life better than or greater than Hajj. And therefore, it was only the last messenger who could have given it. यानी ये मेरे लिए एक हिस्टोरिकल डायनामिक की भी बात है, खत्म नबूवत की भी बात है, रसूलुल्लाह की ग्रेटनेस की बात है, सूरह हज के नाम की भी बात है। ये यूं बात चलती है। मैं जरा जल्दी से एक बात बता गया और आगे बात चलते हैं। थैंक यू जी। मैं बट यस, यही एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल सफर स्पिरिचुअलिटी में अपने कल्ब की तरफ जाने की बात। तो इंडीड ऐसा ही है। श्योर, ये तमाम मनाजिल अंदर है। अग्री। ठीक है, मैं अगली कुछ कैटेगरीज बताऊं। यस भाई, कुछ सूरतें हैं जिसमें अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, इब्राहिम, मरियम, लुकमान, नूह, सूरह मोहम्मद, ये अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम के हवाले से सूरतों के नाम। ना अभी की ये बहस के लिए तो बड़ा कॉन्वर्सेशन कहीं और चला जाएगा, लेकिन जो एक समझने की बात है, ये अंबिया असल में मरातिब वजूद है।
ये शऊर की तमसीलें हैं। गोया सूरह हूद के अंदर में कोई डायनामिक है जो इंसान के अल्लाह ताला के रवाबित में एक दर्जा है जो कि वो सूरह हूद की तरफ में इशारा है। ये मेरे बस में नहीं कि मैं बता सकूं, आई डोंट नो, आई कैन ओनली गिव द आउटवर्ड। लाजल कयास यूसुफ है, इब्राहिम है, मरियम है। और मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी की बात लगती है कि सूरह ईसा जो है ये चंद नुस्खों में सूरह जुमा का दूसरा नाम है। अमेजिंग ये कमाल की बात। लेकिन सूरह मरियम जो है वो फिक्स्ड है और सूरह ईसा है, बट वो राइज ना हुई जैसे सूरह गाफिर और सूरह मोमिन के दो नाम हैं। एक बिल्कुल तवील आर्गुमेंट है, वोंट गो देयर, बट फॉर मी सूरह मरियम शोज वुमनहुड at the level where Allah subhanahu wa ta'ala can communicate. तो ये एक बहुत बस कमेंट। लुकमान, अब हजरत लुकमान पर एक बड़ा आर्गुमेंट है कि वो नबी थे या नहीं थे। मैं अभी इस दर्जे पे हुई नहीं कि मैं ये बहस कर सकूं, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने उनको हकीम कहा, उनको वाइज पर्सन कहा, तो ये भी मेरे लिए कोई मसले की बात नहीं है कि हजरत लुकमान एक बहुत आला दर्जा रखते हैं परवरदिगार के पास, इवन इफ ऑफ दैट ऑफ अ सेज, ऑफ अ वाइज मैन, ये भी कोई कम बात नहीं। ठीक है जी, सूरह नूह हो गया, सूरह मोहम्मद। तो ये गोया सूरतों के नाम जो हैं ये दर्जात हैं इंसानी शऊर की, जो तमसील के तौर पर इंसान पा सकता है, जिसकी के निशानदेही कलाम पाक ने की। अभी के लिए ये गुफ्तगू का आई हैव टू पॉज हियर एंड मैं कंक्लूड करूं आखिरी चीज से, एंड देन वी कम टू दैट ब्रिलियंट क्वेश्चन रेज्ड बाय सोडा। आई हैव गिवन यू अ पाथवे ऑफ थिंक। The 114 names of the Suras in the Quran encompass in them the categories of creation symbolically. जाहिर है जनाब मखलूक में तो 114 मखलूकात से तो कई गुना ज्यादा है, वी नो दिस। ये बात पे यानी कोई परेशानी की नहीं। लेकिन परवरदिगार का आलम कबीर को आलम सगीर में कलाम पाक के दर्जे पे लाने की बात पे अगर ये 114 सूरतों के नामों पर हम गौर करें और इतनी वसअत पाएं, तो फिर कलाम पाक का जो मोजज़ाती कमाल है वो हमारे सामने आता है। दिस नाउ कम्स टू द क्वेश्चन जो मरियम साहिबा ने पूछा है, एंड आई विल नाउ गो टू द लास्ट स्लाइड एंड हेंस द ओरिजिनल इनसाइट वंस अगेन। हियर इट इज। The names of the surahs of the Quran correspond to categories of existence in the macrocosm. जो दरखास्त है, अदबन जो दरखास्त है वो ये है कि आज और आज से जब हम कलाम पाक की सूरतों को पढ़ें, 1 मिनट जरा सूरत के नाम पर पॉज करके सोचें, ये एक कैटेगरी है इंसानियत में, कायनात में, वजूद में। ये मेरे शऊर और मेरी तवज्जो की तरफ दावत है। यही कलाम पाक जो हिदायत है मेरी हयात के लिए, यही कलाम पाक मेरी तवज्जो के लिए और मेरी आंखों की ट्रेनिंग के लिए चीजों को अपने अंदाज में पेश करता है। यही एग्जैक्ट लॉजिक अल्लाह ताला की कसमों पर है। द ओथ्स ऑफ द कुरान, जो अल्लाह ताला ने कसमें खाई हैं, वत्तीन वज़ैतून, यानी एटसेट्रा एटसेट्रा। आई कैन नॉट गो इनटू, एक पूरा अलग सब्जेक्ट है, कोई और महफिल हो तो हम उस पर फिर बात करेंगे। तो जिस तरह अल्लाह ताला कसम खा करके हमारी तवज्जो दिलाता है मखलूकात की अजीम चीजों की तरफ, मैं समझता हूँ सूरतों के नाम भी परवरदिगार का एक अंदाज है हिदायत का कि आप गौर करिए, एवं ही नहीं है ये ऐसे ही नहीं, ये एक इसके पीछे। और अब एक आखिरी कमेंट जो अभी बस जहन में बात आ गई, प्लीज रिमेंबर कि सूरह ताहा, सूरह यासीन, सूरह काफ, सूरह नून हुरूफ मुक़त्तआत वाली सूरतें, हामीम सजदा, 5 ऑफ देम। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी यानी जो विजडम की बात है वो ये है कि नॉट एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस इज नोन, नॉट एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस इज एक्सप्लेन्ड।
Therefore names of these surahs हुरूफ मुक़त्तियात होते हुए पॉइंट करती हैं कि some things are still to be thought about and researched and found. So 114 सूरतों के नामों में हुरूफ मुक़त्तियात की 5 सूरतों के नाम होना, 29 सूरतें हैं वैसे, ये कमाल है कि अल्लाह ताला ने एक दरवाजा खोल रखा है कि there is an infinity of wisdom in our search, in our understanding, in the dimensions of existence that will continue, just as huruf muqattiyat will continue to excite our imagination and our quest. तो इस wisdom के साथ आपको मैं शुक्रिया कहता हूँ. We pause here. जिनको ये PowerPoint चाहिए, ये मेरा email address है, मैं आपको ये PowerPoint आपकी नजर करता हूँ. And we have a few minutes for some wazahat and questions and whatever. I'm at your service. Thank you very much. I'm done. Brilliant, अब्बास साहब, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और बहुत कमाल. मेरे जहन में फौरन बुरूज आया. गालिबन सूरत का नाम भी है ना बुरूज? Exactly, the signs of the zodiac. कितना अहम तरीन एक मौजू है इस्लामी सिविलाइजेशन में और कैटेगरी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी में. जनाब बहुत ही, ये तो बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग फराहम कर दी. थैंक यू. एक कमेंट या क्वेश्चन करना चाह रहा था. हाँ. हो सकता है आपने शुरू में बताया और मैंने वो मिस कर दिया हो कि लफ्ज आयत का मतलब निशानी भी है. जी, तो जी, उससे बिल्कुल है. खुलता है जो मरियम का सवाल था कि भाई इसको सिंबॉलिकली जो आपने बोला, तो वो तो लफ्ज आयत में ही वो है कि भाई एक निशानी तो सिंबल ही होता है. जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल. लफ्ज आयत का अल्लाह ताला ने 3 मानों में इस्तेमाल किया है. ये बहुत बड़ी बात है. आयत रिफर्स टू स्टेट्स ऑफ द सेल्फ. आयत रिफर्स टू स्टेट्स the realities of science and nature, and ayat refers to sentence in the book. और ये तीनों आयतें एक ही किताब का हिस्सा हैं और एक दूसरे के आमने सामने. एक पावरफुल सब्जेक्ट है ये कि how the book connects the universe of the outward macrocosm to the microcosm of the inward. and ये अगली टॉक के लिए रखे. आज मैंने सिर्फ ये कलाम पाक को बीच में मैं लिया. तो यहाँ आप अगर 2-4 मिनट है तो कोई सवाल हो तो कर सकते हैं. जी, मेरा एक सवाल है. पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वो पहले सवाल का जवाब दिया. अभी एक उलझन जहन में ये है कि अब देखें कि अगर हम मखलूकात की भी बात करते हैं, अब उसमें सूरह बकरा है, अब गाय का जिक्र है. इसी तरह आप सल्लम के नामों में वैसे ताहा, यासीन कुछ नाम हैं, यानी कुछ कुछ चीजें अल्लाह ने चुनी है, कुछ पैगंबर हैं, कुछ मखलूकात में से. तो इनके पीछे क्या राज है कि ये किस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि इनको चुना गया है और उनको फौकियत दी गई है दूसरी मखलूकात पर? उनको फौकियत दी गई है के हवाले से तो मैं समझता हूँ आसान सा जवाब है कि सूरह अंबिया के अंदर में प्लूरल यूज करके परवरदिगार ने तमाम अंबिया को एक दर्जा दे दिया. फिर खुसूसी अंबिया के नाम पर सूरतें दे करके कॉन्शियसनेस की स्टेट्स की तरफ इशारा कर दिया. फॉर मी यहां से अब गुफ्तगू शेयरेबल नहीं होगी. अब ये तजुर्बे की तरफ इनविटेशन है. ठीक है जी. यानी बुजुर्गान ने, मुझसे बहुत बड़े लोगों ने इस किस्म की बातें की हैं. टू डिस्कवर द एब्राहम ऑफ वंस बीइंग, अपनी जात में इब्राहिम के दर्जे की खोज तलाश करना, अपने जात में हजरत मूसा किसी तबीयत तलाश करना, इस कबील के जो अल्फाज हैं, मैं इनको इन अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए खुसूसी समझता हूं जो इस सूरतों के नाम में आए. ठीक है, फेयर इनफ, नो इशू. तो एक तो आपकी बात है. तो एक सवाल मैंने चैट में देखा, शुअरा का लफ्ज पूछा गया था कि प्लीज एक्सप्लेन. दैट्स पोएट्स, यानी कि शायर का प्लूरल है. भाई परवरदिगार को बहुत अच्छी तरह से लगता है कि ह्यूमैनिटी में एक कैटेगरी है लोगों की जो शायर हजरात हैं. फेयर इनफ, बस तो वो है. सवाल वैसे एक जहन में आता है कि सूरह अल फतह और सूरह अल फत्ताह, इससे क्या, ये वाकई सोचने का इनविटेशन आपने दे दिया कि इंसान फिर सोचे. जी जी बिल्कुल. देखिए, अब
जो सूरह फतह है, यानी सूरह फातिहा इज डिफरेंट. इंटरेस्टिंगली, सूरह फातिहा एंड सूरह इखलास आर द ओनली टू सूरज named without a word occurring in that surah. ये कमाल की बात. यानी सूरह फातिहा, फातिहुल किताब, यस, आगाज, बिगिनिंग, द ओपनिंग, सब सही है, लेकिन लफ्ज फातिहा सूरह फातिहा में नहीं. ओके. और इसी तरह सूरह इखलास में नहीं. तो ये भी खुद इसके पीछे फिर रुमूज है, इसके पीछे फिर वंडर्स है कि व्हाई आर दीज टू. अब आप गौर कीजिए इनकी यानी सेंट्रलिटी कितनी अहम कि नमाज में और उसमें को दीन में. यू कांट डू एनीथिंग विदाउट सूरह फातिहा एंड सूरह इखलास. ठीक है जी. एक फॉर द मोमेंट आपको हमने दे दिया. सूरह हिजर ले लीजिए. You see, the moment you take the rock and Surah Fatah, the opening, and you take moments in the Prophet's life as significant, so then you see how these dots connect. Yes, yes. Wow, wow. Yeah. सूरह इखलास का शायद कोई और भी नाम है ना, तौहीद या Same with Surah Fatiha, which has a whole lot of other names. कहते हैं उसमें वर्ड आ जाता है, ठीक है, लेकिन सूरह शाफी, सूरह काफी, इस मुतफरिक अल्फाज. ये सूरत की अज़मत है ना. ये तो रिकॉर्ड है. सही. एक कमेंट मेरे जहन में आ रहा था जी. ये जो अंबिया के नाम पे जो सूरतें हैं, इनको आपने कहा कि ये सिंबलाइज कर रही हैं शौरी और वजूदी दर्जात. ठीक है. अच्छा, फिर मेरे जहन में फिर आया कि इसको गालिबन फिर उससे रिलेट किया जा सकता है कि मेराज में मुख्तलिफ आसमानों में रसूल अकरम को अंबिया मिले. तो मेरे ख्याल उसके साथ मतलब इसको देखा जा सकता है कि उसके साथ इसका क्या लिंक बनता है. यकीन, बिल्कुल. सर देखिए, मेराज में सैयदना मूसा का एक बड़ा रोल है. इत्तेफाक से किसी सूरत का नाम मूसा नहीं है. ये देखें अल्लाह ताला की हिकमत देखें. इन ऑर्डर टू मेक श्योर, सी 100 as I said कि दिस इज एन इन्विटेशन. हमने इसके ऊपर, जैसे हमने क्लियरली कहा कि कायनात में 114 से बहुत ज्यादा रियलिटीज हैं. हमने ये बात मना नहीं की कि एवरीथिंग इज इन दिस. हम ये कह रहे हैं कि 114 सूरतें एक इन्विटेशन है जो लिंक करती हैं हमारे आइडियाज ऑफ द माइक्रोकॉस्म टू द मैक्रोकॉस्म. अब अंबिया के ये नाम दिए गए हैं, फेयर इनफ, दैट्स इट. बट वी नो कि हजरत मूसा का बाय नेम सबसे ज्यादा जिक्र. वो तो बनी इसराइल में शायद आ जाएंगे. करेक्ट, बनी इसराइल के हवाले से ऐसे कैटेगरी ऑफ ह्यूमैनिटी आ जाता है. बिल्कुल ठीक. थैंक यू. सी एग्जैक्टली. बहुत खूब. मैं ख्याल है बहुत ही सैर हासिल और बहुत ही मजेदार भी कहूँ कि ना कहूँ, बेअदबी ना हो, मगर बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग रही. बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे ख्याल से इजाजत लेनी पड़ेगी, दिल तो नहीं चाह रहा अगर रमजान. नहीं, थैंक यू. भाई दुआ में मेरे लिए याद कीजिएगा, मेरे लिए प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माय फैमिली, जैसे कि आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ आवर कनेक्टेड वंस एंड आवर लव्ड वंस. ये बरकतों का महीना है, दुआओं का महीना है, और इनमें एक दूसरे के लिए दुआ में परवरदिगार ने खास तौफीक रखी है. मैं उसी दुआओं का तलबगार. बहुत बहुत थैंक यू. शुक्रिया. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब. थैंक यू वेरी मच.